लाचार है हम, लेकिन तेरे कलमे के वफादार है हम, लेकिन तेरे कलमे को वफादार है हम। और तागूती सपाह से है मसरूफे नबुर्द, तागूती सपाह से है मसरूफे नबुर्द। मौला तेरी नुसरत के तलबगार हैं हम, मौला तेरी नुसरत के तलबगार हैं हम। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना আসলাম মিনাই সাহেব। এরপরে আমি বন্দি মুক্তি কমিটির ছোটন দাস মহাশয়কে অনুরোধ করব ওনার বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। আমি আমাদের বক্তাদের অনুরোধ করব আপনারা 4 থেকে 5 মিনিটের মধ্যে বক্তৃতা সীমিত করুন। 4 থেকে 5 মিনিটের মধ্যে আপনারা বক্তৃতা সীমিত করুন। আমাদের অন্য গেস্টরাও আছেন, তারাও বক্তব্য রাখবেন। मैं तमाम मुकर्रिरीन से गुजारिश करूंगा कि 5 मिनट में अपनी बात खत्म करें। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাবো যারা আজকে সারা দিনের কাজ বন্ধ করে এই প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন, তাদের সকলকেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইসরায়েল রাষ্ট্র আজ থেকে 70 বছর আগে এরকম কোনো দেশ ছিল না। 1948 সালে আমেরিকার মদতপুষ্ট ইংল্যান্ড, যে ইংল্যান্ড আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে ভাগ করেছে, সেই ইংরেজরাই ভাগ করে 10% ইহুদি জনসংখ্যা ছিল, তাদেরকে 50% এবং বাকি 50% সেখানকার আরব জনগণের। আজ থেকে বহু বছর আগে আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী 1938 সালে বলছেন যে ইংল্যান্ড যেমন ইংরেজদের, ফ্রান্স যেমন ফরাসিদের, তেমনি প্যালেস্তাইন হচ্ছেন আরব জনগণের। 1938 সালে আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তিনি জোরের সঙ্গে বলে গেছেন এই প্যালেস্তাইন হচ্ছে আরব জনগণের ভূমি। ফলে এই আরব জনগণকে উচ্ছেদ করে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের মদতপুষ্ট গোটা পশ্চিমা শক্তি যেভাবে খুন করছে, হত্যা করছে, কেউ এটাকে বলছেন যুদ্ধ। আমি এটাকে যুদ্ধ বলতে রাজি নই। যুদ্ধ হয় দুটো দেশের মধ্যে, একটা দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, প্যালেস্তাইন জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। সেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেমন মহাত্মা গান্ধী ছিলেন, ঠিক তেমনি আশফাকুল্লাহ খান ছিলেন, তেমনি ছিলেন ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকি, বিনয় বাদল ছিলেন। এই সমস্ত শক্তির মিলিত প্রয়াস ভারতবর্ষ মুক্ত হয়েছিল। তেমনি প্যালেস্তাইন জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে কালিমালিপ্ত করা যাবে না, ডিনাউন্স করা যাবে না। কোন অজুহাতেই প্যালেস্তাইন মানুষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদ বলে নিন্দা করা যাবে না। যারা নিন্দা করেন তারা চান বা না চান পশ্চিমা শক্তির হয়ে কাজ করছে। আমি বলি সারা পৃথিবীর মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েছে। দেখবেন আমেরিকা কংগ্রেসে ব্যাপক বিক্ষোভ হচ্ছে। ফলে দুনিয়ার মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার জয়, মার্কিন এবং ব্রিটিশ ইসরায়েলি শক্তির পরাজয়, দুটোই সুনিশ্চিত। আগামী দিনে আমাদের জয়, প্যালেস্তাইন মানুষের জয়, সবই সুনিশ্চিত। ধন্যবাদ। ইসরায়েল ধ্বংস হোক! ইসরায়েল মুর্দাবাদ! এরপরে আমি অনুরোধ করব, আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন খ্রিস্টান মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান বিশপ আলোক মুখার্জি মহাশয়। আমি ওনাকে অনুরোধ করব ওনার বক্তৃতার জন্য। বিশপ অলোক মুখার্জি মহাশয়। এখনো আমাদের র্যালি আসছে, এখনো লোক বলছে র্যালি জওয়াহরলাল নেহরু রোডে এখনো র্যালি রয়েছে। আমি অনুরোধ করব যে এই দিকে লোক চলে আসবেন, বাম দিকে, এবং যেখানে জায়গা পাচ্ছেন ওখানেই বসে যাবেন। আপনারা যেখানেই জায়গা পাবেন ওখানে বসে যাবেন। নমস্কার। আজকে সত্যি একটা বিরল দিন, কেননা এই জন্যই যে আমরা সবাই আমাদের ধর্ম, আমাদের কর্ম ভুলে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমরা কেন উপস্থিত হয়েছি? অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। যে
মিথ্যাতত্ত্ব প্যালেস্টাইন এর উপরে যে ইসরায়েল করছে সেটা কিন্তু সত্যি মারাত্মক নিন্দনীয় ব্যাপার। আমরা কোনো ধর্মের কথা বলছি না, আমরা কোনো কর্মের কথা বলছি না, আমরা শুধু বলছি যে এই যুদ্ধকে তোমরা বন্ধ করো। যতই যেটাই বলুক যেটা যুদ্ধ নয়, এটা যুদ্ধ। এখানে যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে এটা তো যুদ্ধের থেকেও মারাত্মক। পুড়িয়ে দিচ্ছে, কেটে দিচ্ছে, যা খুশি তাই করছে। এবং আমরা সকলে একত্রিত হয়ে এই প্রতিবাদী করব যাতে ইসরায়েল কোনোভাবে কোনো মতে প্যালেস্টাইনকে আর আঘাত না করতে পারে, অসহায় শিশুদের প্রাণ যেন তারা না দিতে পারে, অসহায় বৃদ্ধরা যেন অসহায়ভাবে না চলে যায়। সুতরাং শুধু ভারতবর্ষ নয়, ওটা পৃথিবীকে আমরা ছাড়াবো এবং এর জন্য আমরা যেভাবে প্রতিবাদের সামিল হচ্ছি সেইভাবে সামিল হব এবং একত্রিত হয়ে প্যালেস্টাইনের পাশে থেকে আমরা এই আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাব। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এখন আমরা पैलेस्टाइन ऊपर एक संगीत सुने नेब। फलस्तीन के ऊपर एक तराना हम लोग अभी सुनेंगे। सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी आरिफुर रहमान एक तराना फलस्तीन पर आपके सामने पेश करेंगे। আসসালামু আলাইকুম। এটা আমি একা গাইব না, আপনারা সবাই গাইবেন, কারণ আমরা সবাই ফিলিস্তিনের পক্ষে এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আজকে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। গাইবেন তো সবাই? ये मेरी कौम के हुक्मरां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया की वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ ला से हिला से मेरी गोद में कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खातिम बिठाए हुए मेरे इस सरजमीन पर उमर आए थे, जिसकी बर्बाद है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी में मैं साहिब दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगे में शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर में सौ मानता ही हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं
যে সমস্ত ভাইরা আপনারা এসছেন বোনেদেরকে একটু সাইড দিয়ে দেবেন, ওনাদেরকে সামনে আসতে দেবেন। আপনারা একটু সাইড করে দেন, একটু সাইড দিয়ে দেন, আমাদের বোনেদেরকে সামনের দিকে আসতে দিন। আর যারা এই আমাদের স্টেজের সামনে যে সমস্ত ভাইরা দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে বোনেরা আপনাদের জন্য দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা একটু এক সাইড হয়ে দাঁড়ালে খুব ভালো হয়। মিডিয়া বন্ধুদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা একটু সাইড হয়ে দাঁড়ান, বোনেরা দেখতে পাচ্ছেন না পেছন দিক দিয়ে। सामने जो खड़े हुए हैं, मेरे पीछे माँ बहनें खड़ी है, वो देख नहीं पा रही, और पीछे से औरतें आ रही है। वॉलेंटियर को कहना है कि उन्हें जगह दे के आगे ले आए। আলহামদুলিল্লাহ, গত 26 তারিখে আমাদের একটি ছোট মিটিং হয়েছিল তারিক ফজলুর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে। ওই মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে এক সপ্তাহ পর আমরা কলকাতার রাজপথে একটা বড় র্যালি করব। সেদিনই ডাক দেওয়া হয়েছিল এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাদের রাজ্যবাসী এবং বিশেষ করে কলকাতা এবং কলকাতার লঘুয়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে হাজার হাজার পুরুষ এবং মহিলা আজকে এই র্যালিতে যোগ দিয়েছেন। এখনোই র্যালি ঢুকছে। আমি আমাদের ভাইদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা যেখানেই জায়গা পাচ্ছেন বসে যাবেন, মহিলাদেরকে একটু জায়গা দেবেন। আমরা আমাদের প্রোগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমি এরপরে স্বামী ডক্টর প্রমানন্দ গিরি মহারাজ, যিনি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে এসেছেন, উনাকে অনুরোধ করবো ওনার বক্তৃতার জন্য। মিডিয়া বন্ধুদেরকে আগে বসিয়ে দিন, আগে নিয়েছে মিডিয়া বন্ধুদেরকে, मीडिया जो আছে তাদেরকে आगे বসিয়ে দিন। ওরা দাঁড়াচ্ছে না, वहाँ खड़ा नहीं रहे, आगे उन लोग को भेज दीजिए, बैरिकेड से बैठ के सामने भेज दीजिए। चालू कर लेगा। আজকে যে মহা মিছিল, এই মিছিলে আমি আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। কেন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছে, এগিয়ে যাও, পিছিয়ে থেকো না। তোমাদের সামনে অসংখ্য ভাই বোনেরা আহত এবং নিহত হচ্ছে। তাদের যে আর্তনাদ, তাদের যে কান্না, সেই কান্নাকে বন্ধ করার জন্যে তোমাদের হাতে হাত মিলিয়ে তোমাদেরকে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের এই বক্তব্য পৃথিবীব্যাপী প্রচারিত হয়েছিল। তাই আজকে আমরা ইসরায়েলের বা প্যারিসের যে আমার ছোট ভাই বোনের যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের যাতে শান্তি পাওয়া যায়, সেখানে যে যুদ্ধ যাতে বন্ধ হয়, আর কখনো এরকম আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, মানুষ মারা না যায়, সেই জন্য আমরা প্রত্যেকে আন্দোলন করব, এগিয়ে যাব এবং সবাই একত্রে আমরা বলবো, একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান আমরা ভাই ভাই, প্রতিটা ভাই বোন মিলে আমরা যদি এগিয়ে যেতে পারি, তাহলে দেখা যাবে ভারতবর্ষের জয় হচ্ছে এবং ওদের যুদ্ধ বন্ধ হবে। এই বলে বক্তব্য শেষ করি। इसके बाद मैं जनाब जावेद अहमद खान, मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और मुख्तसर में अपनी बात पेश करें। जनाब जावेद अहमद खान साहब। जावेद अहमद खान साहब कलकत्ता खिलाफत कमेटी के सदर और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, उनसे मुताबिक यहाँ जो बैठे हुए हैं सामने बैठ जाइए, औरतों को नजर नहीं आ रहा है, बराए मेहरबानी सामने से बैठ जाइए, औरतों को नजर नहीं आ रहा। आपके सामने जावेद अहमद खान साहब। सुनिए ना नितिन भाई, बैठिए। सबसे पहले सबों को आदाब, सलाम, মহিলারা বলবে দেখতে পাবেন, तमाम মহিলারা বলছে। साथी आज এই বসুন, এই দাদা, এই দাদা, সব বসুন, पार्टी বসুন, के बल के বসুন, পিছনে মহিলারা বলছে, দেখতে হবে না, বসুন। के आवाज पर और हवानियत के खिलाफ आज जो इकट्ठा हुए हैं, फलस्तीन के फ्रेंड्स के हिसाब से जिन्होंने आज यहाँ पर प्रोग्राम को कायम किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। कम से कम ये तो हम लोग कर सकते हैं कि आज हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। इसराइल सुनेगा नहीं ये आपको, और हम सब जानते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल कानून को भी नहीं मानता, वार जंग की जो कानून है उसको भी नहीं मानता। इंसानियत में उनके जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुसलमानों को मॉन्स्टर, আপনাদের না বসলে ऐसे বসবে না।
लोगों से ऐसे मुल्क से कुछ उम्मीद नहीं रखता है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आप और हम सब मिलकर कुछ करने की अज़म करें। सिर्फ आज जिंदा करने से नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर बोलने से नहीं होगा कि हम उनके खिलाफ हैं। हाँ, खिलाफ है, हमने मिशन किया, हमने यहाँ पर आज गवर्नम देंगे सब देंगे, लेकिन आप एक इंसान हैं। आज किसी और के ऊपर हो रहा है, चाहे फिलिस्तीन के लोग हों, चाहे वहाँ क्रिश्चियन हो, चाहे वहाँ जो यूज है उनके ऊपर भी आज जियोनिस्ट लोग जो इसराइल में हैं, उन लोग जो जुल्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ सारी दुनिया के 192 मुल्क में 121 मुल्क उन्होंने उनके खिलाफ आज करारदाद पास किया, उसको मानने के लिए तैयार है। तो आप उनको क्या करना है? आप चुप से बैठिएगा, मिशन कीजिएगा, चले जाइएगा? नहीं, आपको करना है। आप जितने फॉरेन गुड्स हैं जो इसराइल में बनता है, अमेरिका में बनता है, जो इंग्लैंड में बनता है, आज जो फ्रांस में बनता है, उसका बाइकआउट करें। मेरी माँ बहनों को कहूंगा, आप लोग मैकडॉनल्ड को पर पिज्जा मत खाइए, आप लोग कोकोला मत पीजिए, आप लोग परफ्यूम मत लगाइए, आप लोग लेस का चिप मत खाइए, आप लोग बाइकआउट कीजिए इसराइल का और अमेरिका का। आप उनके जो उनका तहजीब जो है, ताकत है उनका, उसको खत्म करने के लिए आप सब हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। ये इंसानियत को, फलस्तीन को भी तकलीफ पहुंचाएगा, आपको हमको भी पहुंचाएगा। आप यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते, आप जाके वहां पर कर सकते हैं, यहाँ से जाने नहीं। तो आप जो कर सकते हैं वो कीजिएगा। आप जुमले का पानी का पीते हैं, आप क्यों कोकोला पीते हैं, क्यों स्प्राइट पीते हैं, क्यों आप मैकडॉनल्ड का बर्गर खाते हैं, क्यों पिज्जा खाते हैं? बंद कीजिए इसको। मेरी माँ बहनों से इल्तिजा है और तमाम औरतों और मर्दों से जो यहाँ पर है हमारे वहाँ, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आज इसराइल में ज्यादातर फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, लेकिन वहाँ चर्च भी तोड़ा जा रहा है, वहाँ अस्पतालों को भी बर्बाद किया जा रहा है, मरीजों को भी मारा जा रहा है, बच्चों को भी मारा जा रहा है। 4000 के ऊपर बच्चे मारे गए। उनका क्या कसूर है? औरतों का क्या कसूर है? आज आपने हबस को आपने तैयार किया, इसके खिलाफ PLO के खिलाफ आपने तैयार किया है, हमस को किसी और ने नहीं तैयार किया है। जिस तरह आज आप हमस के नाम पर कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आज कहां से आपके पास तो 192 चेक पोस्ट था, आपका सर्वाइलेंस सेंटर था, तो किस तरह वो लोग आर्म्स एम्यूनिशन लाए कि वहां एक मक्खी नहीं उड़ सकता है, आज किस तरह लाए? इसके लिए आज हम लोग कहते हैं कि आप ये जो जंग कर रहे हैं, ये हमस और किसके साथ कर रहे हैं उसके साथ कीजिए, लेकिन जो मजलूम बच्चे और औरतें हैं, जो नौजवान हैं, उनको मारना छोड़िए, नहीं छोड़िएगा। आप सबों से ये इल्तिजा करते हुए कि हर फॉरेन गुड्स को आप लोग बाइकाट कीजिए, चाहे कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चाहे खाने का चीज हो। ये कहकर आप सबों से यही कहूंगा कि यहीं बंद नहीं करना है, इसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ना है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जनाब जावेद अहमद खान साहब। यकीनन हमें इजरायली गुड्स का बाइकआउट करना चाहिए, ये पैगाम भी आज के इस प्रोग्राम से दिया जा रहा है। मैं जनाब अब्दुल अजीज साहब से गुजारिश करूंगा मुख्तसर में अपनी बात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब। दुनिया का हर फाइटर फ्रीडम जो मुल्क के लिए लड़ता है वो फ्रीडम फाइटर है, उसको दहशतगर्द नहीं है। चाहे भगत सिंह हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे मौलाना आजाद हो, इसी तरह हमास का हर फर्द फ्रीडम फाइटर है, जिहादी है, और वो इस तरह ईमानी ताकत का मुजाहरा कर रहा है कि दुनिया बिल्कुल भौचक्का है और पूरी दुनिया को उसने हिला दिया है कि एक सर से बांध कर कफन कैसे लोग लड़ते हैं। अमेरिका भी हवास बांटता है और इसराइल भी हवास बांटता है, और इस वक्त 26-27 दिन से हमास मुकाबला कर रहा है दुनिया की दो बड़ी ताकतों से। और जहां तक इसराइल का मामला है, ये अलामत है साजिश की, ये अलामत है जुल्म की, ये अलामत है एक बारूद के ढेर का, ये एक जुल्म है, दहशतगर्दी है जो अमेरिका और बरतानिया ने वहां लाके इसराइल को बसाया है। और जहां तक हमास का मामला है, हमास ने इलेक्शन लड़ा है, कहां लड़ा है? गाजा में भी लड़ा है और
ये ईमान का जबरदस्त मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ तकरीर कर रहे हैं और अभी 6-7 अफराद हम लोग जाएंगे अमेरिकन कॉन्सुलेट, और वहाँ अमेरिकन कॉन्सुलेट से अगर मुलाकात हुई या उनके नायब से मुलाकात हुई तो हम लोग यहाँ के जो जज्बात हैं और दुनिया भर के इंसानों को जो जज्बात हैं उसको हम लोग पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल अजीज साहब। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब महर अब्बास रिजवी साहब से कि वो आए और मुख्तसर में अपनी बात वही करेंगे। जनाब शकील अहमद साहब, मौलाना शकील अहमद साहब मुख्तसर में यहाँ पर मुख्तसर में 3-4 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि प्रोग्राम असर का वक्त मामला भी है, इसलिए गुफ्तगू करते वक्त इस बात का खुसूसी ख्याल रखें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। मेरे बुजुर्ग मोहतरम साथियों और मेरी माँ बहनों, देखिए जहाँ पे जुल्म बढ़ता है और जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ता है, तो जब मजलूम की आवाज बुलंद होती है तो जालिम का एक नहीं चलता है। ये हकीकत जान लीजिए, ये जालिम ये इसराइल और अमेरिका ये सोच रहे थे कि मुट्ठी भर मुसलमान जो फिलिस्तीन में जिंदगी गुजार रहे हैं, इसको निकाल करके हम फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे और बैतुल मुकद्दस को अपने हवाले कर लेंगे। लेकिन ये पता नहीं था कि जो खुदा अबाबीलों के जरिए खाने कबा को बचा सकता है, उसने इंसानों को पैदा किया है, उसने बच्चों को पैदा किया है। वही बच्चे फिलिस्तीन को बचाएंगे और बैतुल मुकद्दस को बचाएंगे। और ये दुनिया देख रही है, आज इस्लामी ममालिक ये पूरी कायनात में फैले हुए हैं। मैं इस्लामी ममालिक से भी चाहता हूँ कि वो लोग भी अपनी अपनी जगह से ऐलान जंग करें। जिस तरीके से ईरान फिलिस्तीन के हवाले से बहुत मुत्तहिद होकर काम कर रहा है, ईरान ने शुरू से कहा है कि बैतुल मुकद्दस हमारा है, ऐसे हम लेके रहेंगे। अमेरिका मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, गॉड बेड अमेरिका, अमेरिका कहिएगा, गॉड बेड अमेरिका, गॉड बेड अमेरिका, इस्राइल मुर्दाबाद। इस्लामी ममालिक इतने सारे हैं, अगर सब मिलकर बायकॉट कर दे और फिलिस्तीन की हिमायत करे, खुदा शाहिद है वो भीख मांगने पर आ जाएगा। ये अमेरिका इससे भीख मांगेंगे। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर सिर्फ सऊदी अरब हमारा साथ दे, मैं उसको भीख मंगवा के रहूंगा। इसलिए कि ये ईरान है, ये इराक है, ये सऊदी अरब है कि जहाँ तेल की पैदावार होती है। लिहाजा आज के जमाने की जरूरत है कि जहाँ भी इंसान है और जहाँ भी खासकर मुसलमान है, उन्हें एक होने की जरूरत है। कहीं भी मजलूम की आवाज बुलंद हो तो उसके साथ हमें होना चाहिए। लिहाजा हम यहाँ से आज ऐलान जंग करते हैं और हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं एक डेलीगेशन जो है वो अमेरिकन कॉन्सुलेट को जाएगा। मैं जो डेलीगेशन के मेंबर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे पुलिस के भाइयों के साथ चले जाएं। कौन सिंह है? फिर तकरीर करेंगे, ठीक है। जी, अब्दुल अजीज साहब, मौलाना मारूफ सब्जी साहब, नासिर अहमद साहब, जनाब मलिक मोहम्मद इसार साहब, सुजाउद्दीन साहब और महर अब्बास रिजवी साहब से गुजारिश है कि आप लोग पुलिस की गाड़ी में चले जाएं कॉन्सुलेट, और वहां पर जाकर डेपुटेशन जो है वो देकर फिर आप लोग वापस यहाँ पर आए।
इन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चले जाएं, हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए मैं मुफ्ती खालिद आजम हैदरी साहब से गुजारिश करूंगा, ये भी हमारे ज्वाइंट कन्वेनर हैं, मुख्तसर में अपनी बात पेश करें। আচ্ছা, যে ভলেন্টিয়ার আগে আছেন, যারা ভলেন্টিয়ার পিছনে গিয়ে একটু আপনারা ম্যানেজ করুন, পিছনে গিয়ে ম্যানেজ করুন, वक्त खास ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा। तमाम मज़ाहिब के जिम्मेदारान और तमाम मसलक और फ़िरका के नुमाइंदे इस वक्त हम सब मुत्तहिद होकर जो तहरीक चला रहे हैं, वो तहरीक ये है कि हम इसराइल के जुल्म व सितम को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसी के लिए हम लोगों ने ये रैली का इनेकाद किया है। आप हजरात 3 लफ्ज़ को बार बार सुनते हैं। एक लफ्ज़ है जुल्म, दूसरा लफ्ज़ है जालिम और तीसरा लफ्ज़ है मजलूम। जुल्म कहते हैं हद से ज्यादा किसी के साथ ज्यादती करने को। जो ये जुल्म करता है उसे हम जालिम कहते हैं और जिन पर जुल्म किया जाता है वो मजलूम होता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत ने फरमाया है, सारी दुनिया तस्लीम करती है कि आपसे बड़ा कोई इंसानों का खैर खा और इंसानियत का पासबा नहीं। आपने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया है कि तुम अपने भाई की मदद करो, अगर वो जालिम है तब भी और मजलूम है तब भी। अपने भाई से मतलब जो कलमा पढ़ते हैं वो भी मुराद हैं और जो आदम की औलाद है वो भी मुराद है। किसी भी खित्ते में, किसी भी जगह में, किसी भी मकाम में अगर जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना ये इंसानियत की पहचान है, ये इंसानियत की तरक्की है, ये इस बात की अलामत है कि इंसान अभी जिंदा है। हम लोग इस वक्त जो है जालिम के खिलाफ खड़े हुए हैं और जालिम की मदद हमको इस तरह करनी है कि उनके जुल्म को रोक दिया जाए, उनके जुल्म को खत्म कर दिया जाए, उनके जुल्म को मलियामेट कर दे। अभी हमारे सामने हमारे इस रियासती वजीर जावेद अहमद खान साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो बात मेरे भी मजमून का हिस्सा है कि आप कैसे उस जालिम का पंजा मरोड़ेंगे। मैं समझता हूं जो उन्होंने कहा है कि उनकी माशी कमजोरी और उनके माश को और उनके इकोनॉमिक से जो ताकत है उसको खत्म करने के लिए इसराइल के खास तौर से और अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं उनका आप न सिर्फ बायकाट करें बल्कि आप उसके खिलाफ मुहिम चलाएं कि कोई भी उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करे। और दूसरी बात यह है कि आप मजलूमों के हक में दुआ करें। मजलूम के हक में जब दुआ होगी तो यकीन है और दिलो जान से इस बात पर हमारा ईमान है कि मजलूम की वो दुआ कबूल होगी। और तीसरी बात ये कहनी है कि एहतजाज हर वक्त आप करेंगे, अपनी जुबान से, अपने कलम से, अपने माशरा में, फेसबुक के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, जहां आपको मिले जालिमों के खिलाफ एहतजाज करें। यही इस हदीस का निचोड़ है, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। इसराइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। सलाम हो उन तमाम फलस्तीन के शहादा को और अल्लाह ताला उन शहादा के मकाम को आला करे और मजलूमों की मदद करे। आखिर दावा इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल এরপরে আমি सोहन सिंह आतियाना, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर में अपनी बात रखें। सोहन सिंह आतियाना जी से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और बहुत ही इख्तिसार के साथ मुख्तसर में अपनी बात रखें।
आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पैलेस्टाइन के दोस्तों के लिए, पैलेस्टाइन के हक की लड़ाई के लिए। आज आप ये देख लीजिए, 75 साल पहले जैसे हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने दो तरफ बांट दिया, हिंदुस्तान का पाकिस्तान और इंडिया बना दिया, वही चीज उन्होंने पैलेस्टाइन में घुस के पैलेस्टाइन के घर में यहूदियों को बुला करके उनका परमानेंट लड़ाई का जरिया बना दिया कि वो सारी जिंदगी वहां लड़ते रहो। और ये अमेरिका और इंग्लैंड वालों की चाल है, अंग्रेजों की। आज अमेरिका की जो भी आर्म्स लॉबी है उसको कंट्रोल कौन करता है? यहूदी कंट्रोल करते हैं। यहूदियों का काम क्या है? ब्याज खाना, और वो बैंकों को कंट्रोल करते हैं। उसकी वजह से अमेरिका पर प्रेशर होता है। अमेरिका पहली कंट्री थी जिसने इजराइल को मान्यता दी, और इंडिया पहली कंट्री थी जिसने पैलेस्टाइन को मान्यता दी। और आज हिंदुस्तान की जो अभी गवर्नमेंट है वो एकदम उल्टा हो गया, पूरा फॉरेन पॉलिसी उन्होंने अपनी पूरी पलट दी है। अब वो पिट्ठू बन गए हैं अमेरिका के और इजराइल के, और इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि मोदी सरकार ने अपने पड़ोसियों से भी लड़ाई लड़ रही और पिट्ठू बन गए हैं अमेरिका के। ये आखिरकार करना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता। लोगों को आपस में डिवाइड करो और रूल करो। हम लोग को सबको मिल करके एक साथ एकजुट आवाज में प्रो पैलेस्टाइन हम लोग का नारा देना चाहिए, और ये आवाज वहां तक पहुंचे लोगों के पास कि जो जुल्म कर रहे हैं उसको जुल्म को रोका जाए, सीज फायर की जाए। इमीडिएट यूएनओ में हम लोगों को पूरा जोर से अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ ये करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, अमेरिका शेम। अब आपके सामने इस जलसे के कन्वेनर हजरत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब, इमाम ईदैन, ग्रेट रोड कोलकाता तशरीफ ला रहे हैं, आपसे मुखातिब होंगे। দেখুন কারি ফজলুর রহমান সাহেব, এই যে ফ্রেন্ডস অফ প্যালেস্টাইনের কনভেনার, যার নেতৃত্বে আজকে এই সভা হচ্ছে, উনি আপনাদের সামনে বক্তৃতা রাখবেন। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे मुसलमान और तमाम हिंदू, सिख, ईसाई भाइयों और मेरी माओं और बहनों, कलकत्ता जैसे शहर का एक बहुत बड़ा हक फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए था। आज के इस रैली में वो हक अदा हो गया, और जितने लोग इसमें शरीक हुए हैं इन्होंने फिलिस्तीन के मजलूमों का हक अदा किया है। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ इस रैली में शिरकत की और अपने मजलूम भाइयों के लिए हमदर्दी और उसके लिए मोहब्बत का मुजाहरा किया। यहूदी जो कौम है उसके लिए तो बहुत वक्त चाहिए कि वो कौन है, उनके हालात क्या हैं। एक मुख्तसर बात ये बता दूं कि ये सूअर और खिंजीर की औलाद है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर व अबदत तागूत उलाइका शर्रुम मकाला व अज़ल्लु सबीला। ये यहूदियों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ये वो कौम है
कि जिसको अल्लाह ने इनके जुल्म के पादाश में और इनकी बदकारियों बदआमालियों की जजा में अल्लाह ने इनको बंदर और खिंजीर में तब्दील कर दिया और इनकी राह को भटका दिया, और ये लोग सबसे ज्यादा भटके हुए बेराह रो लोग हैं। ये कैसे किसी की बात सुनेंगे, ये कैसे यूनाइटेड नेशन की बात सुनेंगे, ये कैसे दुनिया की अपीलों पर ध्यान देंगे। इनका खमीर जो है, इनके बाप दादा जो गुजरे हैं, वो उनकी नस्ल ठीक नहीं है, वो इंसान की औलाद नहीं है, बल्कि उनकी नस्ल में किसी और का खून मिला हुआ है। यही वजह है कि इनके अंदर न रहम पैदा हो रहा है, न इनके अंदर की इंसानियत जाग रही है, और न किसी की बात पर ये ध्यान दे रहे हैं। बहरहाल आज ये ताकत में है, इसलिए जुल्म ढा रहे हैं, मगर ये बात याद रखिए कि हमास के फिलिस्तीन के हमास को सलाम कीजिए कि उन्होंने इसराइल का भरम तोड़ दिया। जो इसराइल ये सोचता था कि दुनिया में हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता और हमारे हथियार सबसे बेहतर हैं और हमारा ये एयर डोम कोई तबाह नहीं कर सकता, हमास ने उस एयर डोम को तबाह कर दिया। हिफाजत करे, अल्लाह उनकी मदद करे, अल्लाह ताला उनको और हिम्मत और कुव्वत अता फरमाए, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। खून उन्होंने बहाया है मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए, अल्लाह उनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। आप देखिए कि पूरे मिडिल ईस्ट का रुख पलट गया है, हमास पूरा नक्शा पलट गया है। जो लोग डर रहे थे कि हम इसराइल को पता नहीं हमको इसराइल क्या कर देगा, आज वो डर खत्म हो गया है। जो लोग दबाव डाल रहे थे कि इसराइल से मुआहदा करो, इसराइल को तस्लीम करो, अमेरिका दबाव डाल रहा था और दूसरे ममालिक छोटे छोटे मुल्कों पर अरब वाले को बलम वालों को दबाव डाल रहे थे कि इसराइल को तस्लीम करो, मगर अब किसी का मुंह नहीं रहेगा कि वो ये बात उनसे मनवाने की कोशिश करे, उस पर दबाव डालने की कोशिश करे कि इसराइल को तस्लीम करो, क्योंकि इसराइल का पटरा बिछा दिया है, हमास ने पटरा बिछा दिया है। और इंशाअल्लाह ताला नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, पता बहुत करीब होगी और इसराइल का वजूद दुनिया से मिट जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मजबूत ईमान वाला बनाए और हम इस पर डटे रहें, हम अपने मुतालबे पे कायम रहें। ये सिर्फ आज की एक रैली नहीं है, बल्कि और भी हम रैलियां निकालें, इससे भी बड़ी रैलियां निकालें और दुनिया वालों में ये साबित करें कि हम फिलिस्तीन के हक में आवाज उठा रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत हमारे ईमान की हिफाजत है। दुनिया में हमारे लिए तीसरी मस्जिद है, पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम, दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी, तीसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा। ये हमारी 3 मस्जिदें हैं जिनमें नमाज पढ़ने का लाखों लाख सवाब मिलता है। और मस्जिद अक्सा तो वो मस्जिद है कि हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से उठाकर मस्जिद अक्सा लाया गया, वहाँ नबियों की इमामत कराई गई, सारे नबियों को वहाँ जमा किया गया और फिर वहाँ से सीढ़ी लगाई गई और हमारे आका मौला आसमानों में तशरीफ ले गए। ये वो मुबारक जगह है जिसको फिलिस्तीन कहते हैं, ये वो मुबारक और मुक़द्दस जगह है जिसको मस्जिद अक्सा कहते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी इन इबादतगाहों को और अपनी इन यादगारों को उसको अच्छी तरह से समझें, पढ़ें और लोगों को बतलाएं कि हम क्यों ये जुलूस निकाल लें, हम क्यों झंडा लेके बाहर आए, हम क्यों अपने घर से सड़क पे उतरे हैं। ये एक बहुत बड़ा मामला है, एक बहुत बड़ा हादसा है, एक बड़ा सानहा है जो वहाँ हो रहा है। हम उसकी मजम्मत में यहाँ निकले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तमाम
उन मंदूबीन का जिन्होंने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा, हमारे सिख भाई, हमारे स्वामी जी और हमारे क्रिश्चियन भाई, हिंदू भाई, जो लोग हमारे बुलाने पर, हमारी तहरीक पर यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी हमदर्दी का मुजाहरा किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मामले में चलते रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इज़राइल मुर्दाबाद, इज़राइल मुर्दाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। এরপরে আমি ডক্টর মসিউর রহমান সাহেব, আমির হালকা জামাতে ইসলামী হিন্দ পশ্চিমবঙ্গ, ওনাকে অনুরোধ করবো স্টেজে এসে ওনার বক্তৃতা রাখার জন্য। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। আজকের এই বিশাল জনসমাবেশে উপস্থিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিগণ, ভাইরা এবং মা ও বোনেরা, আপনাদেরকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ পেশ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা, আপনারা জানেন এই কলকাতা শহরের একটা বিশেষ ট্র্যাডিশন, ঐতিহ্য রয়েছে। তা হলো এই কলকাতা সব সময়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ আওয়াজ উঠিয়ে এসেছে। এই কলকাতায় ইয়াসির আরাফাত এসেছিলেন, যিনি পিএলওর প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং কলকাতাবাসী তাকে ওয়েলকাম করেছিলেন। এই কলকাতা শহর, এই শহর থেকে আমরা সমস্ত রকমের অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম তা পৃথিবীর যে কোনো জায়গা হোক না কেন, সে ভিয়েতনামে হোক, আর সে কলম্বিয়ায় হোক, কিউবায় হোক, আর সে ফিলিস্তিনে হোক, বা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় হোক, আমরা এখানে কলকাতাবাসী তার বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠিয়েছি। আজকে এই মহা র্যালি তার সাক্ষী হয়ে রইল। সম্মানিত ভাইয়েরা, আজকের যে যুদ্ধ চলছে, অ্যাকচুয়ালি এটা হামাস এবং ইসরায়েলের যুদ্ধ নয়, এটা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যে লড়াই চলছে, যুদ্ধ আসলে মানবতার পক্ষে লড়াই। ইসরায়েল ওয়ার ক্রাইম করছে, ইসরায়েল সরকারের বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসে ওয়ার ক্রাইমের জন্য সেখানে তার বিরুদ্ধে কেস দায়ের করা উচিত। রাষ্ট্রসংঘকে এই বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা শুনেছি সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে রাষ্ট্রসংঘের এক অফিসার আধিকারিক, তিনি ইসরায়েলের বর্বরিয়াতের বিরুদ্ধে তার বিবেককে না দিয়েছিল, চাই তিনি রিজিগনেশন দিয়েছেন। আমরা গুতেরেসকে, জেনারেল সেক্রেটারি অফ ইউএনওকে অনুরোধ করব, তিনি যেন এমন পদক্ষেপ নেন যাতে করে এই ইসরায়েলের গণহত্যা বন্ধ হয়। এই যে ইসরায়েল আজকে যে কাজ করছে, যে অন্যায় করছে, শিশু এবং বাচ্চাদের মারছে এবং নারীদের উপর অত্যাচার করছে, এবং আপনারা জানেন যে হসপিটালে বম্বিং করা হয়েছে, আপনার জামালায় রিফিউজি ক্যাম্পে বম্বিং করা হয়েছে। তারা তখন নামাজ পড়ছিল, সেই অবস্থায় সেখানে বম্বিং করে মানুষকে মারা হয়েছে। 8,000-এর বেশি নারী, শিশু, সাধারণ মানুষ আজকে নিহত হয়েছে। নেতানিয়াহু, যিনি ইসরায়েলের এই পরপর এক প্রাইম মিনিস্টার, তিনি কোনো কিছুই মানছেন না এবং তিনি রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকেও জুড়েছেন। আজকে বলা হচ্ছে এর সঙ্গে ধর্মকে জোড়া ঠিক নয়, কিন্তু নেতানিয়াহু কি বলেছেন? তিনি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে আমাদের এটা হলো সেই সময়, যে সময় আমাদের যুদ্ধ করা দরকার, আমরা এই যুদ্ধ করব, অর্থাৎ গ্রেটার ইসরায়েল তৈরি করার জন্য
তাদের যে নীল নকশা রয়েছে, তারা আপনার আরবের মক্কা এবং মদিনা পর্যন্ত তাদের স্কেচ রয়েছে, ম্যাপ রয়েছে। গোটা মধ্যপ্রাচ্য এবং ওয়েস্ট এশিয়াকে তারা গ্রেটার ইসরায়েলের ম্যাপের মধ্যে তারা অনেক আগে নিয়ে এসেছে। সেই যুদ্ধ আজকে তারা শুরু করেছে। এই খেলার বিরুদ্ধে, এই অন্যায় অত্যাচার জুলুম নৃশংসতার বিরুদ্ধে আজকে আমাদের সকলকে এক হতে হবে। আমাদের ওলামায়ে কেরামরা কথা বলেছেন যে যে কোনো ভাবেই হোক আপনার ফিলিস্তিনবাসীদের পক্ষে দাঁড়ানো এটা মুসলমানদের উপরে যেমন ওয়াজিব, তেমনি সমস্ত মানবতাবাদী মানুষের জন্য অবশ্য করণীয় কর্তব্য হলো তারা মানবতার পক্ষে আওয়াজ দেবে। আমাদের মহাত্মা গান্ধী তিনি বলেছিলেন 1948 সালে হরিজন পত্রিকা লিখেছিলেন যে ইট ইজ ক্যানট বি জাস্টিফাইড বাই এনি কোড অফ মোরাল কন্ডাক্ট। কোন নৈতিকতার মানদণ্ডে পাপ কাটিলে একে বিচার করা যাবে না, যেভাবে ইসরায়েল ফিলিস্তিনকে দখল করেছে। আমরা জানেন যে মহাত্মা গান্ধীর পরে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাইম মিনিস্টার জওয়াহরলাল নেহরু থেকে আরম্ভ করে এমনকি বাজপেয়ী পর্যন্ত ফিলিস্তিনের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু আজকের মোদী সরকার গৌতম আদানির পক্ষ নিয়ে তারা ইসরায়েলের পক্ষ নিয়েছে ক্যাপিটালিস্টদের স্বার্থকে দেখার জন্য। আপনারা এখন কি জানেন যে গৌতম আদানি ইসরায়েলের হাইফা বন্দর কিনে নিয়েছে? তারা যে রোড তৈরি করতে চাচ্ছে ভারত থেকে গ্রিস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য, তারা এই জন্যে আজকে গাজাকে ফিলিস্তিনকে পুরোপুরি দখলে ইসরায়েল নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছে। এর জন্যই যুদ্ধ। হামাস কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন নয়। হামাস ইজ নট এ টেররিস্ট অর্গানাইজেশন বিকজ কারণ এই জন্য 2001 সালের পরে ইউরোপীয় ইউনিয়নে 28টা দেশ আছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের জেনারেল কোর্ট রায় দিয়েছিল যে হামাসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন অর্গানাইজেশন বলা যাবে না। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোর্টে জেনারেল কোর্টে তারা কেস দায়ের করেছিল, কিন্তু এটাকে রিজেক্ট করে দিয়েছে, রিপার্সেল করে দিয়েছে। সুতরাং হামাস হচ্ছে স্বাধীনতাকামী সংগঠন। আমাদেরকে এই বিষয়ে স্মরণ রাখতে হবে এবং এই জন্য আজকে আমরা মানবতার পক্ষে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি। এই লড়াই উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, এই লড়াই কলোনিয়ালিজমের বিরুদ্ধে লড়াই, এই লড়াই মানবতার পক্ষে লড়াই। সুতরাং আজকে কলকাতার সমস্ত মানুষরা, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তারা যে বক্তব্য রেখেছেন এই বক্তব্যকে আমরা স্যালুট জানাই। এবং ইন্ডিয়া জোট তারা বিশেষ করে আপনারা জানেন যে সোনিয়া গান্ধী তুলে করেছে ইসরায়েল সরকারের বিরুদ্ধে। এবং কিন্তু মোদী গভর্নমেন্ট স্টেটমেন্টটা দিয়েছিল প্রথমে হামাসকে সন্ত্রাসবাদী বলেছে, ইসরায়েলের পক্ষ অবলম্বন করেছে। তারা শুধুমাত্র নিজেদের ভোট ব্যাংকের জন্য এখানে সোশ্যাল ডিভিশন করার চেষ্টা করছে। 2024-এর পার্লামেন্ট ইলেকশনকে সামনে রেখে আমরা তাদের নাপাক উদ্দেশ্যকে কন্ডেম জানাই। আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ, আমরা সব সম্প্রদায়ের মানুষ, আমরা সকলে এক হয়ে আমরা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এবং তার মেন্টর আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আমরা এক হব। আপনারা জানেন ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকা তাদের ইম্পেরিয়ালিজম, তাদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র কি ছিল? ব্রিটেন একটার পর একটা দেশ দখল করে লুট করেছে, গণহত্যা করেছে। জার্মানিরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 2 কোটির মতো মানুষ তাদের জন্য মরেছে। আপনারা জানেন ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকা দখল করেছে, লিবিয়া, লেবানন এবং সারা টিউনিসিয়া, আলজেরিয়ায় হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। তারা আবার সভ্য বলে, তারা বলে উই আর সিভিলাইজ। এরা সিভিলাইজ নয়, এরা কাপড়ে বাবু, এদের পয়সা আছে, এদের সাম্রাজ্য আছে, এরা সিভিলাইজ নয়। সিভিলাইজ মাতৃত্ব হবে নবী এবং রাসূলের কাছ থেকে। ফিলিস্তিনের জমি হচ্ছে হলিল্যান্ড, পুণ্যভূমি। এখানে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পা মুবারক ওখানে করেছে। সুতরাং নবীরা কোনো জাতি নয় না, নবীরা আল্লাহ রাসূল, আল্লাহর নবী হন। তারা আল্লাহর তরফ থেকে পাঠানো প্রায় প্রফেট এবং পয়গম্বর। তারা সমস্ত মানুষের কাছে আল্লাহর সত্য বাণীকে পৌঁছে দিয়েছেন। সুতরাং ওই হলিল্যান্ডে ইসরায়েল অত্যাচার জুলুম এবং বর্বরী যাত্রা আছে, এর বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষকে এক হতে হবে। এই বলে আমরা শেষ করছি। আমরা এখন জামাতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সভাপতি অর্থাৎ আমির হালকা ডক্টর মসিউর রহমান সাহেবের বক্তব্য শুনছিলাম। এরপরে অনন্য শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীরা একটা ছোট্ট সঙ্গীত আপনাদের সামনে পেশ করবে। আমি শিল্পীদেরকে অনুরোধ করবো, সঙ্গীতটা স্লোগান যখন তারা পরিবেশন করবে
সমানাই যখন বলবে আপনারা সবাই মিলে সমানাইটা বলবেন, তবে দেখবেন এটা খুব ভালো হবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মানব শত্রু ইসরায়েল তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। বিশ্ব মানবতার কাছে তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। মানব শত্রু ইসরায়েল তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। বিশ্ব মানবতার কাছে তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। ফিলিস্তিনের নিজের বাড়ি তোরা হলি দখলদারি, ফিলিস্তিনের নিজের বাড়ি তোরা হলি দখলদারি। হত্যা আর জুলুমকারী তোদের ক্ষমা নেই, মানব শত্রু ইসরায়েল তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। বিশ্ব মানবতার কাছে তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। যারা হাসপাতালে বোমা মারে মানুষ তারা নয়, নানা মানুষ তারা নয়। যারা স্কুলেতে বোমা মারে মানুষ তারা নয়, নানা মানুষ তারা নয়। যারা হাসপাতালে বোমা মারে মানুষ তারা নয়, নানা মানুষ তারা নয়। যারা স্কুলেতে বোমা মারে মানুষ তারা নয়, নানা মানুষ তারা নয়। পশুর চেয়ে অধম তারা, তাদের ক্ষমা নেই, নেই ক্ষমা নেই, ওরে নেই ক্ষমা নেই। মানব শত্রু ইসরায়েল তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। বিশ্ব মানবতার কাছে তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। ফিলিস্তিনের নিজের বাড়ি তোরা হলি দখলদারি, ফিলিস্তিনের নিজের বাড়ি তোরা হলি দখলদারি। হত্যা আর জুলুমকারী তোদের ক্ষমা নেই, মানব শত্রু ইসরায়েল তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। বিশ্ব মানবতার কাছে তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। যারা ইসরায়েলের পাশে আছে তাদের বিবেক নাই, নানা তাদের বিবেক নাই। যারা হত্যাকারীর পক্ষে আছে তাদের বিবেক নাই, নানা তাদের বিবেক নাই। যারা ইসরায়েলের পাশে আছে তাদের বিবেক নাই, নানা তাদের বিবেক নাই। যারা হত্যাকারীর পক্ষে আছে তাদের বিবেক নাই, নানা তাদের বিবেক নাই। ফিলিস্তিনের পাশে যে নাই তাদের ক্ষমা নেই, নেই ক্ষমা নেই, ওরে নেই ক্ষমা নেই। মানব শত্রু ইসরায়েল তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। বিশ্ব মানবতার কাছে তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। ফিলিস্তিনের নিজের বাড়ি তোরা হলি দখলদারি, ফিলিস্তিনের নিজের বাড়ি তোরা হলি দখলদারি। হত্যা আর জুলুমকারী তোদের ক্ষমা নেই, মানব শত্রু ইসরায়েল তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। বিশ্ব মানবতার কাছে তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। মানব শত্রু ইসরায়েল তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। বিশ্ব মানবতার কাছে তোদের ক্ষমা নেই, নানা তোদের ক্ষমা নেই। ইসরায়েল হটাও, ইসরায়েল হটাও। इसके बाद मैं जतिंदर पाल सिंह जी से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलना चाहूँगा फिलिस्तीन के सपोर्ट के लिए सिर्फ मुसलमान होना जरूरी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना जरूरी है। और मैं इंसानियत का एक उदाहरण हूँ, वही देने आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली ये युद्ध बंद होना चाहिए, ये जो कत्लेआम चल रहा है ये इमीडिएटली बंद होना चाहिए। थैंक यू। जतिंदर पाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
वो हमारी रैली में शामिल हुए। इरफान अली ताज भाई से गुजारिश है कि 2 मिनट अपनी बात करें। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, साथियों, माँ बहनों, आज यहाँ पे जितने लोग भी इस जुलूस में शामिल हुए, इस एहतजाजी जुलूस में, सबके दिल में कहीं ना कहीं पे दर्द है हमारे फलस्तीन भाइयों के लिए, हमारी औरतों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। एक और बात है कि हम लोग फलस्तीन तक पहुंच नहीं सकते। अगर हम लोग फलस्तीन तक पहुंच सकते तो इंशाअल्लाह आज इजरायलियों का नामो निशान दुनिया से मिट जाता। पर क्योंकि हम लोग फलस्तीन नहीं पहुंच सकते हैं, हम लोग यहाँ रहकर अपने मुल्क में, अपने देश में, अपने घरों में उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, उनके लिए रोजे रख सकते हैं। और खास तौर पे जैसा कि हमारे बड़े भाई जावेद खान साहब ने बताया कि इजरायली जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग बाइकआउट कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आज हम लोग उनके प्रोडक्ट को बाइकआउट करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो रॉकेट और ये जो जहाज इन लोग इस पैसे से खरीद रहे हैं, इस पे लोग नाकामयाब होंगे। हम लोगों के इनके जो प्रोडक्ट्स है उनको बाइकआउट करना जरूरी है। और हमारी जितनी भी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, आप लोग अपने घरों में दुआएं करें ताकि वहाँ हमारी जो माँ बहनें परेशान हाल हैं, बच्चे जो परेशान हाल है, जिनको इलाज नहीं मुयसर हो पा रहा है, हमारे बच्चे रोज शहीद हो रहे हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम अता फरमाए। तो यही बात करके रुखसत दूंगा, क्योंकि और भी बहुत सारे यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जो आप लोगों को बताएंगे कि आगे और किस तरीके से हम लोग इस एहतजाज को आगे लेके चलना है। और याद रखिए, ये एहतजाज बंद नहीं होना चाहिए। ये हम लोग एहतजाज उसी दिन बंद करेंगे जिस दिन हमारे फलस्तीन के भाइयों के साथ बेइंसाफी होगी। जब तक फलस्तीन के लोगों के ऊपर में ये लोग जो बमबारी कर रहे हैं, ये एक जंग नहीं है, ये नस्ल कशी किया जा रहा है, जब तक का ये बंद नहीं होगा हम लोग अपना एहतजाज बंद नहीं करेंगे। हम लोग के बड़े बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरीके से वो हम लोगों को बताएंगे। इंशाअल्लाह उन लोगों के पीछे चल करके हम लोग अपने एहतजाज को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। আচ্ছা, আমি हमारा जो डेलीगेशन আমাদের যে ডেলিগেশন গিয়েছিল চলে এসছে, ওখানে ওনারা মেমোরেন্ডাম দিয়েছেন। तो कैलकाटा खिलाफत कमेटी जनरल सेक्रेटरी नासिर अहमद साहब से गुजारिश करते हैं जो मुख्तसर में अपनी बात करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये जो जम्मे गफीर है, ये वाकई कलकत्ता के लिए एक तारीखी चीज है कि हम लोगों के दिलों में फलस्तीन के जो लोग हैं, जो मारे जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में बमबारी करके उनको खत्म किया जा रहा है, ये इसके खिलाफ हम लोग जो प्रोटेस्ट रैली निकाले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। हम आपको एक चीज बताएं, एक तो इस्राइल और दूसरा अमेरिका, ये दोनों इतने बुज़दिल हैं, ये इतने कावर्ड हैं कि अभी हम लोग पहले तो उसने कहा कि 7 आदमियों को वहां अलाउ करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। 7 की जगह में 6 आदमी गए। उसने फिर रोड के वहां पे कॉन्सुलेट के अंदर में जाने नहीं दिया। उसने कहा कि सिर्फ 2 आदमी जा सकते हैं और वो भी कॉन्सुलेट से नहीं मिलेंगे, उसके पीए से मिलेंगे। और वहां पे उनसे मिल करके एक तो मेमोरेंडम भी दिया गया और कुरान पाक की एक नुस्खा दिया गया और हदीस का जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है वो दिया गया। ये कमबख्त, ये कावड़, ये बुज़दिल, ये क्या फाइट करेंगे? इनके पास में बमबार जहाज है, इनके ऊपर में समुद्री ये है, जिसकी वजह साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ये गरीब और बेसहारा लोगों को बमबारी करके उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ग्राउंड फोर्स के ऊपर में आएंगे, खुदा की कसम 140 करोड़ मुसलमान पूरे दुनिया में हैं और ये तो 1 करोड़ है, कहाँ 1 करोड़, कहाँ 140 करोड़। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और उसके बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के जमाने में 2 सुपर पावर उस वक्त में भी थे
कैसर, कसरा, किसी से डरे मुसलमान कभी डर नहीं सकता। उसके पास में हिम्मत है, उसके पास में कुव्वत है, उसके पास में जज्बात है, इस्लामी जज्बात, और वो तो हर तरह से कामयाब है। मर गया तो शहीद है, जीत गया तो गाजी है। इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत जरूर होगी। बहुत शुक्रिया जनाब नासिर अहमद साहब। इसके बाद बच्चियां हैं जो आपके सामने कुछ स्लोगन देंगी। उन बच्चियों से गुजारिश है तो स्टेज पर आ जाए। बच्चे और बच्चियां हैं वो स्टेज पर आए। वक्त बहुत कम है इसलिए हम लोग प्रोग्राम को समेट रहे हैं। मौलाना मारूफ सल्फी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अपनी गुफ्तगू पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद की मैं आयत करीमा पढ़ता हूँ और उसका तर्जमा, और उसी पर 2 मिनट आपसे बात करूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़फ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا। हिजरत मदीना के बाद जो मर्द औरत और बच्चे मक्कतुल मुकर्रमा में फंस गए थे और जिन पर जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े आते थे, उनकी दिल की आवाज को कुरान ने नकल किया है और मुसलमानों के जज्बात को बरंगेख्ता किया। मैं फलस्तीन के मर्दों, औरतों और बच्चों की आवाज को इस आयत करीमा की रोशनी में पेश करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करते हो? हालांकि कमजोर मर्द, औरतें और बच्चे अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, ऐ हमारे रब,
इस जालिम बस्ती से हमें निजात दे दे और अपनी जानिब से हमारे लिए वली और कारसाज मुकर्रर कर दे और साथ साथ हिमायती और मददगार मुकर्रर कर दे। मेरे भाई और बहनों, तीन चीजों की से मुताल्लिक तीन बातें आपके सामने रखनी है। एक है अर्ज़ फलस्तीन, दूसरी है फलस्तीन में मस्जिद अक्सा और तीसरी है यहूदी, इसे इजराइल के नाम से जानते हैं। पहली बात तो याद रखिए, यहूदी की तारीख या इजराइल की तारीख बड़ी दागदार रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को गालियां दी है, अपने जमाने के रसूलों को कत्ल किया है, इलावा अजीज जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किया, अपनी किताबों में रद्द बदल तक किया है। और जानते हैं इस यहूदी की सजा क्या हुई? ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से तकरीबन 586 साल पहले बनु कद नजर ने इसे बेखूबन से तकरीबन उखाड़ ही फेंका था। बहुत से लोगों को जहन्नम रसीद कर दिया गया, खून की सलाखों में डाला गया, फिर कुछ लोगों के रहमो करम से इन्हें बचाया गया। मेरे दोस्त ईसा अलैहिस्सलाम के 5 से 70 साल के बाद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 70 साल के बाद टेटस रूमी ने इसे बेखूबन से उखाड़ ही दिया था। उसकी वो तारीख है और इन तमाम तारीखों के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, यहूदी वो कौन মাইক লেগেছে, মাইক থেকে লাগান রে হবে না। আরে ওখানে দোকানার কাছে দিবি, দোকানা হিন্দিতে একজনের বলবে, বহুত লোক দাঁড়িয়ে ভাইরাল হবে বলে বুঝলে রে। फिलिस्तीन के बारे में कुछ बताइए। फलस्तीन को अल्लाह के बाद बताने में कुछ किया था। तुम जाओगे साथ में मेरा? কিছু বলতে হবে না, মাইক্রোটা দিতে হবে। ফোন লেখা ফোন দেবো, ফোন লে করলেই যথেষ্ট, কিন্তু মাইক্রো ভালো বক্তব্য রাখবে। পিন্টুর দেখলে ওখানে ভিডিও করার দরকার নেই, বুঝিস না? একজন রয়ে থাক, ওসব জায়গায় ভিডিও মেন পয়েন্ট ওই একটা থেকে বের হয় ওর মধ্যে। আরে ওই এ করে এতে হাজারো ভিডিও, এতে রেকর্ডিং এর বার করে এ করলে সেটাই খুলতে পারছি না। तो रेकॉर्ड होती ही जाते। कि जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है ना, तो जिस्म में रूह होती है, लेकिन हकीकत में वो मुर्दा होता है। तो फलस्तीन के जंग में करबला का इतना ज्यादा तेजी के साथ तस्करा क्यों चल रहा है? करबला हो चुका है, फलस्तीन का चल रहा है। हाल का करबला फलस्तीन है। आप देख लीजिए, ताकतवर फौजें एक तरफ और हाथ में पत्थर लिए, छोटे छोटे बंदूक लिए एक तरफ। ये फलस्तीन के लोग हैं जिनके शिकम में खाना नहीं है, सही से पीने को पानी नहीं है, गोद में बच्चे लिए हुए, लाशें उठा रहे हैं, हर रोज 6 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, यानी नमाज जनाजा भी वाजिबन पढ़ रहे हैं। ये करबला इसीलिए है, जो करबला में कम थे लेकिन हक पर थे। और इसराइल ज़्यादा है, लेकिन वो हकीकत में कि बातिल पर है और अल्लाह उसके साथ नहीं देंगे। नुकसान तो फलस्तीन का ही हो रहा है, जानी नुकसान है, लेकिन ईमानी नुकसान नहीं है। वो हकीकत ये है कि वो ज़िंदगी से इस दुनिया को हाथ धो रहे हैं, यानी शहीद हो रहे हैं। और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि क्या तुम लोग ये समझ रहे हो कि जो राह खुदा में
मौत पा रहे हैं, क्या वो मर गए हैं? बल्कि मरे नहीं हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह के सामने वो जिंदा है और अल्लाह के पास वो रिस्क पा रहे हैं। मुस्लिम ममालिक दो चार ऐसे हैं वो तो मतलब ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो तो अय्याशी में डूब हैं, तो उनको फ़लस्तीन से क्या लेना देना? बस वही मसला है, उनको उनका नफ्स मर चुका है। आपको मालूम है करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन पुकार, वो नवासे रसूल थे, इमाम हुसैन बोल रहे थे कि मैं रसूल का नवासा हूँ, मेरी बात सुनो, यजीद खलीफतुल्लाह नहीं है, मैं खलीफतुल्लाह हूँ। लेकिन फिर भी लोग हुसैन की बातों को नहीं मान रहे थे। उसकी वजह क्या थी? उनका शिकम हराम गज़ा से भरी हुई, लिहाजा अब उन पर ना रसूल की बातें असर करने वाली थी, ना हुसैन की बातें असर। अब चाहे पूरी दुनिया मिलकर उसे समझा ले, वो नहीं समझ रहा। क्यों? इसलिए कि वो हराम ग़िज़ा उसके अंदर है, वो हराम खोर है, नजीस चीज़ खाते हैं, बेहया हो चुके हैं, उनके पास किसी तरह का कोई हलाल हराम नहीं है। लिहाजा वो लोग जुल्म करेंगे और जुल्म के हद तक बढ़ते चले जाएंगे। बस हम पर जो वाजिब है कि हम ये जालिमों का साथ ना दें, जो हर इंसान के ऊपर वाजिब है, हर बिलखुसूस हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है कि जालिम के खिलाफ उठ खड़े हों, अपना जो आपका राइट है उसको जहाँ तक कमज़ोर करना चाहे कमज़ोर कीजिए। हम कह देते हैं लेकिन करते नहीं हैं, उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़बानी दावा नहीं बल्कि अमल भी कीजिए। आज से ठान लीजिए हम इसराइली प्रोडक्ट, चाहे सर्फ हो या साबुन हो या कोई भी मेकअप हो या कोल्ड ड्रिंक हो या कपड़े हो या सॉफ्टवेयर हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ हम इसराइली, वो चीज़ें इसराइल को हम लोग हिमायत करके हम नहीं करते। धन्यवाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।